Welcome to Think Like UPSC. Now let's proceed with the stratification as per Max Weber. So Max Weber's perspectives on social stratification and what was his view. So according to Weberian perspective, to which social stratification is based on class, status, and power. So his here he is saying that. He refused to believe that stratification to economic factors or class in Weberian terms, or you can say, but he saw it as a multi-dimensional. Thus we can say society here, society is stratified on the basis of economic economics. Second number, he said status, or you can say prestige, and third one is as per power. ठीक है. So here on resulting implications and is that people can rank high on one or two of these dimensions, stratification, and low on the other, and permitting क्या चीज a far more sophisticated analytical or analysis of social stratification. So here class, according to, he said that in his class theory, class according to him, it's not a community but merely a group of people. It's not about a community, it is merely a group about people, and people in the same economic or a market situation. It is a group of people who share a similar position, like all of you who are all of you are preparing for UPSC. So you have a similar interest, similar thought process, so similar position you have, like you people are at a similar situation. So it is a group of people who share a similar position in the market situation, class situation. Therefore, it is, you can say, therefore is a market situation or a economic situation. So according to Weberian economic condition of a person's affects his or her chances of obtaining those material things which are deemed as desirable in the society. So Weber used the term life chances, life. तो he's used in this, he used the term, क्या चीज यूज करी उन्होंने, लाइफ चांसेस, जिसका मतलब है कि लाइक जैसे हमारी लाइफ में ना कोई चांस मिलता है हमें टू गेट रिवॉर्ड एंड एडवांटेजेस अफोर्डेड बाय मार्केट कैपेसिटी और टू डिफ्रेंशिएट अ डिफरेंट क्लासेस. जैसे हमें मौका मिला है, आप लोगों को मौका मिला है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, और आगे आपको वो एक इकोनॉमिक लाइफ में एक चांस मिला है, बट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स who have the family responsibility, they can't prepare for this exam. ऐसा नहीं है वो करना नहीं चाहते, they have thing but they have not gotten the chances, they don't have chances because they are on their shoulder they have responsibility of family's bread earner, they are the family's bread earner. How can they prepare for this exam? So the point is here, life चांसेस, लाइफ क्या होगी, लाइफ में चांसेस मिले हैं, एंड हियर विच रेफर्स का मतलब, इसका मतलब है कि ये रिवार्ड एंड एडवांटेजेस से भरी हुई है, अफोर्डेड बाय market capacity to differentiate different classes. Though those who share a similar life chances, जिनके पास में similar life chances होते हैं, share a similar class, and hence on the basis of life chances Weber see different classes like propertied, upper class, propertyless, white collar workers और pretty bourgeois and manual working class. तो मार्क्स एंड वेबर के थ्योरी हमें पता है दोनों की क्लास पे क्या व्यूज़ थे, क्या उनके थिंकिंग थी, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था. तो यू कैन गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर एंड यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर. उसके बाद में हम ये बोल सकते हैं कि लाइक ऑन द अदर हैंड that class, Weber proposed the concept of status group.
Next, he proposed the concept of status group, and status group differ from class in being communities. ये इसका मतलब है कि status group का differentiation होता है as per like वो एक तरह से like community के basis पे, and here Weber said that the status situation is determined by positive or negative social estimation of honor, जहाँ पे positive aspects भी हो सकते हैं, negative भी हो सकते हैं, and while class refers to the unequal distribution of economic reward, जहाँ पे status refer to unequal distribution of social honor, जहाँ पे like आप देखोगे कि the people who are born into the पुअर फैमिलीज, और एक है कि अपर फैमिली लाइक रिचर फैमिली में बॉर्न हुआ है, तो दे हैव डिफरेंट स्टेटस, दोनों को डिफरेंट स्टेटस है, ठीक है. एंड दिस may be a honor may be for any quality that is shared by the people and held in esteem, and position of property is not always associated with a social honor is therefore not essentially हम बोल सकते हैं a qualification for acquiring status, जहाँ पे status में क्या क्या आता है, इनकम, सामने वाले की पर्सन की इनकम कितनी है, दूसरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है. ऐसा हो सकता है कि लाइक एक पर्सन बहुत रिच है बट ही और शी इज इंडल्ज्ड इन रॉन्ग एक्टिविटीज, ठीक है. इनकम, फैमिली बैकग्राउंड हो गया हमारे पास में, एंड थर्ड वन इज योर एजुकेशन. कोई कॉन्वेंट से पढ़ा है, कोई सरकारी स्कूल से पढ़कर आया है, कोई फॉरेन से पढ़ा है, एंड ऑल दीज, इन सभी क्राइटेरियाज के साथ के बेसिस पे हम स्टेटस को डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि लाइक स्टेटस ये चीज़ है, ठीक है. सो यू कैन से दीज वैल्यू में बी आइडेंटिफाइड एज अ मार्कर ऑफ स्टेटस. तो स्टेटस रिलेटेड टू कंजम्पशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड वेयर क्लास रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रोडक्शन. यहाँ है कि ये क्लास इकोनॉमिक प्रोडक्शन की बात कर रहा है, यहाँ स्टेटस की वजह से सामने वाला कंजम्पशन ऑफ गुड्स कर सकता है, ठीक है. एंड इसी बेसिस पे वी कैन से वी आर लाइक अ स्टेटस ग्रुप आर ऑलवेज अवेयर ऑफ देयर कॉमन स्टेटस सिचुएशन. एंड वेबर आर्ग्यू करते हैं यहाँ पे कि जो स्टेटस ग्रुप है दे रीच देयर मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म इन कास्ट सिस्टम. जब हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, इधर यू टॉक अबाउट अ जाट कम्युनिटी, और यू टॉक अबाउट ब्राह्मण कम्युनिटी, और यू टॉक अबाउट यादव कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी की बात करो, किसी भी कास्ट की बात करो, तो ये यहाँ पे मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम पे रीच करते हैं. इनके वैल्यूज वो सब, इन सबकी थिंकिंग एक ही तरह से होगी, बस एक ही जगह ये वो बोलेंगे नहीं नहीं रिजर्वेशन हटना चाहिए, बट वैसे अंदर से देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि सबके व्यूज़ एक ही जैसे हैं. इनको किसी को पसंद नहीं आता वो रोड पर झाड़ू लगाने वाला जो पर्सन है ना, वो जो स्वीपिंग कर रहा है, दैट नोबडी. अगर हम विलेज की साइड में जाते हैं तो वहाँ पे नहीं पसंद आता. I'll tell you, last year I had a student and they were Cholukyas. His son just said, if I was teaching him secularism. His son just said that if पापा अगर मैं किसी दलित लड़की को घर ले आया तो. His father simply denied and said, I'll throw you out of the home. And that's the view of a family who is living in Delhi, that's in a posh colony, and they are working in a very good MNC. तो आप ये अनुमान ये लगा सकते हो, हम जो बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम हटना चाहिए, ये हटना चाहिए. जैसे अभी यूपी में रिसेंटली योगी गवर्नमेंट हैज़ रिमूव्ड अ सरनेम कास्ट सिस्टम. कास्ट नहीं लगाना है आपने. इट मे बी अप्रिशिएटेड एज अ गुड मूव, बट मेजॉरिटली मॉरल वैल्यूज़ पे काम करना है. We have to work on moral values. We are not inculcating moral values in our students, in our kids. So that's the major problem. जहाँ हम moral values inculcate करने लगेंगे और हमें उन बेचारों की समस्याओं के बारे में जब हम सोचेंगे, देखते हैं हम आसपास में होता है उनके साथ बुरा, ऐसा नहीं है. एक आध कोई टीनादा भी होता है, हर कोई नहीं होता.
मेजोरिटी आज भी वही है, रोड पर झाड़ू लगाने वाले किसी से ना, मेरी बात मान के किसी से जाके ना जस्ट सिर्फ उसकी जाति पूछ लेना, विल कम टू नो ही इज़ वाल्मीकि और SC और ST, इन्हीं में से कुछ है। ही इज़ लाइक बेसिकली वही होगा। और या प्रेस करने वाले मेजोरिटी लोगों से पूछ लेना। तो ये ना आज भी है और इसी चीज़ को हमें ख़त्म करना है, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। और मंदिर का पुजारी आज भी तुमको पंडित मिलेगा, कोई यादव नहीं मिलेगा या कोई चौधरी नहीं मिलेगा, मंदिर का पुजारी पंडित ही मिलेगा। तो ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, ये देखो क्लास हो गया, स्टेटस हो गया एंड party. Like here you can say economic stratification dividing one class, status here social stratification dividing line 2, AK यहाँ पे पार्टी में political stratification dividing line 3 हो गई, ठीक है। आगे the crucial characteristics of a class are individual share a particular casual phase of their lives, ठीक है, ये बताया मैंने, सेम ही बताया है, इकोनॉमिक ड्राइव ठीक है, क्लास सिचुएशन इज एसेंशियल टू मार्केट सिचुएशन, ठीक है। वेबर आइडेंटिफाइड 4 ग्रुप्स ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है। पहली चीज अपर क्लास, दूसरी चीज प्रॉपर्टी लेस और विद वाइट कॉलर क्लास, जिनका प्रॉपर्टी नहीं है बट वाइट कॉलर क्लास है, वाइट कॉलर वर्कर्स हैं, ठीक है। एंड द प्रिटी बुर्जॉइज एंड द मैनुअल वर्किंग क्लास, ठीक है। तो वेबर का स्ट्रैटिफिकेशन जो स्कीम है वो स्टेटस ग्रुप 1, स्टेटस ग्रुप 2, स्टेटस ग्रुप 3 एंड दिस काइंड ऑफ डायग्राम यू कैन सिंपली ड्रॉ इट इन योर आंसर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रेस्टाइज एंड पावर की जब हम बात करते हैं वेबर के अकॉर्डिंग, तो वेबर ये बोलते हैं लाइक बिकेम द आउटस्पोकन क्रिटिक्स ऑफ मार्क्स, ही सेड दैट सी प्रॉपर्टी एज द होल पिक्चर इज शॉर्ट साइटेड, सोशल क्लास ही सेड इज actually made up of 3 components: property, prestige and power. So according to Girth and Mills in 1958, Weber in 1928 he used it, and some call these the 3 P's. कौन से 3 P's? Property, power, prestige. These were the 3 P's used in his theory, and he basically clear a term बताई आगे इन्होंने। He said property, said Weber, is certainly significant in determining person's standing in society. उसका property ये बताती है कि उसका क्या stand है society पर। On the other hand, he agreed that वो मार्क्स को एग्री करते हैं, बट ही एडेड वेबर्स ओनरशिप इज नॉट ओनली सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप ही नहीं है सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल some powerful people such as manager of the corporation control the means of production although they do not own the company, वो कंपनी को नहीं ओन करता। इफ मैनेजर कैन कंट्रोल प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन बेनिफिट awarding themselves huge bonuses and magnificent perks, it makes no practical differences that they do not own the property that they are generously using for their own benefit. प्रेस्टाइज की जब बात करते हैं, जैसे सेकेंड एलिमेंट प्रेस्टाइज की है जो वेबर की एनालिसिस बोलती है दैट इट्स अबाउट ड्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर पीपल टेंड टू लुक अप the wealthy. Prestige however can only be based on other factors, जहाँ पे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मे नॉट बी प्रॉपर्टी, ये एक तरह की ओन प्रॉपर्टी नहीं है, बट उसके पास ओन प्रॉपर्टी बट ही में हैव वेरी हाई प्रेस्टाइज, जैसे कि जितने भी हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं, उनकी एक अलग ही सोसाइटी में वैल्यू है, ठीक है, उनको प्रेस्टाइज अलग है। सम आर इवन एबल टू एक्सचेंज देयर प्रेस्टाइज फॉर प्रॉपर्टी सच एज बीइंग पेड अ स्मॉल फॉर्च्यून फॉर सेइंग दैट दे स्टार्ट देयर डे विद द ब्रेकफास्ट एंड चैंपियंस। And here in other words you can say property and prestige are not one way, एक तरह का वे नहीं है, बल्कि किस तरह से हम बोल सकते हैं ऑल द प्रॉपर्टी कैन ब्रिंग प्रेस्टाइज, प्रेस्टाइज कैन ऑल्सो ब्रिंग प्रॉपर्टी, दोनों चीजें हो सकती हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है।
पावर की जब हम बात करते हैं, दिस इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ अ सोशल क्लास, जहां पे इट इज वंस एबिलिटी टू कंट्रोल अदर्स इवन देयर ऑब्जेक्शन. तो वेबर अग्रीड अकॉर्डिंग टू मार्क्स विद मार्क्स ऑन द प्रॉपर्टी इज अ मेजर सोर्स ऑफ पावर, बट ही ऑल्सो एडेड, बट वो उसमें ऐड करेंगे. सो इट इज नॉट द ओनली सोर्स. ही सेज पोजीशन जो है ना आपकी, फॉर इंस्टेंस, कैन ऑल्सो लीड टू पावर. जैसे कि एग्जाम्पल ले लो किसी भी IPS ऑफिसर का या किसी भी IAS ऑफिसर का जो पहले बहुत गरीब था, जैसे साइकिल वाले का लड़का IAS बना, IPS बना. हम इतने न्यूज़ में काफ़ी सोच देखते हैं इस तरह से. तो ये एग्जाम्पल है रिसेंट का, IPS मनोज कुमार शर्मा. व्हेन ही वाज पुअर he had nothing, but once he became IPS he gained power with position and prestige and property too. ठीक है, दोनों चीजें हैं, वो आ गई. अब तीनों चीजें आ गई, पावर भी आ गई, प्रेस्टाइज भी आ गई, प्रॉपर्टी भी आ गई. नोटेबल एग्जाम्पल हमारे पास में है जे एडगर होवर, who headed the FBI in the 48 years from 1924 to 1972. होवर wielded such enormous power, इन्होंने बहुत सारी enormous power wield की, that during his later years even President Johnson and Kendall were fearful to him. वो भी डरते थे इनसे. Hoover's power, however, did not property came from ownership of property, for he lived simply, did not accumulate. Rather, क्या है? His power derived from his position as the head of the powerful government agency. जैसे हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो अजीत डोभाल वो सब बोल सकते हैं. Not only did he direct a well-trained secret police, but he also maintained file on presidents and members of the Congress documenting their sexual indiscretion. Files they knew he could leak to the public if they crossed him. ये देखो, and politician कंट्रोल करने का ये बहुत सही तरीका है. बट यूज मत करना कहीं, वो बाद में बोलो मैम ने तो बोला था. ठीक है, वैसे हमारे देश में है ऐसे पॉलिटिशियन अनोखे. खैर हमारे देश में क्या, ऑल ओवर ग्लोबली हैं सभी जगह. कंपैरिजन बिटवीन कार्ल मार्क्स एंड वेबर की थ्योरी, ये मैंने कल कराया था, बेसिस ऑफ सोशल क्लास में किस तरह से कंपेयर करना है. ये ना आप एक बार पढ़ लेना इसको, क्योंकि ये एज इट इज़ अगर आपके पास में सर्टिफिकेट ये एसेंशियल सोशलॉजी है तो ये उसमें भी दे रखा है. यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर ऑल्सो. ठीक है, ये वही चीज़ है, कंपेयर किया हमने, जो हमने कल भी किया था, तो ये सेम ही है. तो अब ये देखते हैं वाई इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यूनिवर्सल क्यों है. क्यों हम बोल रहे हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होना चाहिए, यूनिवर्सल क्यों है. तो व्हाट इज इट about social life that makes all societies stratified? And we can say we shall first consider the explanation proposed by functionalist, which has aroused much controversy in sociology, followed by criticism of the position, and we then explore explanation proposed by conflict theorist. The functionalist view, जहाँ पे डेविस एंड मॉरी का हमने कल किया था, motivating a qualified people, जहाँ पे ये functionalist takes the position that the group's characteristics and present adaptation को represent करते हैं, that have contributed to the group's survival. Since social inequality is universal है, then inequality must help the society survive. In applying their principle, sociologists Kingsley Davis and Wilbert Murray in 1945 to 1953 concluded that stratification is inevitable for the following reason. Society must make certain that its positions are filed. Some positions are more important than others. The more important position must be filled by the more qualified people. जैसे हम बोलते हैं more important people, like जिसकी अच्छी रैंक आती है उसको अच्छी पोजीशन मिलनी चाहिए. ठीक है, to motivate the more qualified people to fill more position, society must often offer them greater reward. उसके हिसाब से हम greater reward भी देते हैं. ठीक है, जैसे एक CEO हो गया कंपनी का, तो वो मोर क्वालिफाइड होता है तभी तो उसको CEO बनाते हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर बनाते हैं. वोटिंग के प्रोसेस से बनता है. हाउ कैन सोसाइटी मोटिवेट हाईली qualified people to enter such high prestige pressure position? कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? जब तक पक्स नहीं होंगे, हाई नहीं दोगे, सैलरी हाई नहीं दोगे, कोई क्यों करना चाहेगा इतना स्ट्रेसफुल जॉब.
बताओ, पग्स हाई मिलेंगे ना तभी जाता है। अगर जैसे आप सभी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इसका रीज़न क्या है? लाइक सोसाइटी में आप लोगों को क्या चीज़ मोटिवेट करता है? हाईली क्वालिफाइड पीपल, मतलब उस कैटेगरी में एंटर करने के लिए क्या कर रहा है? तो हाई प्रेशर तो रहेगा आपके पास में, पोजीशन भी है। व्हाट कीप्स द पीपल फ्रॉम अवॉइडिंग द एंड सीकिंग ओनली लेस डिमांडिंग? बहुत सारे हैं बच्चे जो सिंपल एक जॉब लेके खुश हैं, ठीक है, हम इतने में खुश हैं, हमें नहीं प्रेशर चाहिए। बिकॉज दिस एज अ डीएम यू विल बी हैंडलिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर। The answer says that Davis and Morey is that society offers greater reward. क्या देती है society आपको? Greater reward देती है for its responsible, demanding and accountable position. If they didn't offer a higher salary, benefits and greater prestige, why would you anyone strive to them for them? Why would you join? No one. अगर कल को बोल दो कि सारे आईएएस की, जितने भी आईएएस हैं या जितने भी नेता हैं, सबकी सैलरी 10,000 दे देंगे, still would you like to prepare for this exam? That time we will see the reality. आपको उस टाइम रियलिटी दिखाई देगी। तो ऐसा नहीं होता ना, तभी होता है जब वहाँ हायर प्रेस्टाइज है, हायर सैलरी है, एंड दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर देयर पोजीशन। तो तभी तो हम उनको इतनी हायर सैलरी देने को तैयार होते हैं, वरना देने को कहाँ तैयार हैं हम। Either you talk about doctors or engineers, किसी की भी बात ले लो। Does a salary of 2 billion, country club membership or a private jet and a chauffeured limousine may be necessary to get the most highly qualified people to compete with one another for a certain position, while drawing how much 30,000 salary without fringe benefit is enough to get hundreds of people to compete for some other lower position. Similarly, higher rewards are necessary to recruit people to position that require a rigorous training. तो आपकी rigorous training होती है लबासना में जाके, उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद ग्राउंड पर भी रिगरस ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग सेशन में। तो उसके बाद दी अगेन कुछ चेंजेस आते हैं, आपको अगेन ट्रेनिंग कराई जाती है। तो वाई सफ़र through the taking tests and writing papers in college or graduate schools if you can get the same pay and prestige with a high school education? क्यों सफ़र करना है? रीज़न तो यही है ना, सफ़र इसीलिए करना है क्योंकि हायर सैलरी चाहिए। The functionalist argument is simple, clear. Society works better if its most qualified people hold its most important position. बट हमारे यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन जैसे नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, they are not most qualified. Even a 10th pass or even a person who haven't went to school can also be a politician. This our constitution gives them this power. ठीक है। Occupation is one of the main element of the social class. Social class का क्या element है? Occupation एक इकलौता element। से पूछते हैं आपके पापा क्या करते हैं, आप क्या करते हो, what's your occupation? It should be evident that this man enjoys an income and life chances that shape his value and orientation to life. अब देखो ये बीच पे बैठा है, मजे कर रहा है, पर काम कर रहा है, बीच पर बैठा है। But are you all sitting at beach right now? No. आप कहाँ घर पे बैठे हो, या फिर अपना पीजी में बैठे होगे, या कुछ बच्चे लाइब्रेरी में बैठे होंगे। तो दे आर यू ऑल आर स्टडिंग। तो ये क्या है? ये ऑक्यूपेशन ही आपको दे रहा है। ही हैज़ अ वेल पेड ऑफ जॉब, दैट्स द रीज़न ही इज़ एबल टू अफोर्ड अ बीच टाइम। तो आराम से बीच किनारे बैठ के ही इज़ वर्किंग ऑन इट, बट ही इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ ऑल्सो। ट्यूमिन एक क्रिटिकल रिस्पॉन्स देते हैं दैट नोट दैट डेविस एंड मॉरे थीसिस इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन व्हाई सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल, नॉट एन अटेम्प्ट टू जस्टिफाई सोशल इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करने के लिए नहीं आया है, नहीं बताया इन्होंने, बट इन्होंने बताया सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यूनिवर्सल क्यों है। नोट ऑल्सो दैट देयर ओन नेवरथलेस मेक्स many sociologists uncomfortable, for they see it as coming close to justifying social inequality. Melvin Tumin in 1953, he was the first sociologist to point out what he saw as a major flaw in the functionalist position. एक second.
अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर देख लेते हैं। तो जेंडर के बेसिस पे जब हम देखते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हियर जेंडर इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन बोथ इन ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न सोसाइटी। दोनों ही ईस्टर्न और वेस्टर्न सोसाइटी में दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक सेकंड। तो यहाँ देखते हैं हम हमारे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो बोथ इन यूरोप और वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जब हम जाते हैं तो द लॉन्ग हेल्ड व्यू जो है आपके वॉज दैट मैन इज अ ब्रेड विनर एंड वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू टेक हाउस होल्ड चोर्स। सो ऑफन इस वजह से क्या हो रहा है कि देयर स्टेटस वॉज लिंक्ड टू द स्टेटस ऑफ देयर हस्बैंड और फादर। तो मेजॉरिटली वुमेन का जो स्टेटस हम डिफाइन करते हैं वो हम मेजॉरिटली किसके बेसिस पे कर रहे हैं कि वॉट एवर द अर्निंग वॉट एवर द स्टेटस ऑफ द फीमेल ऑफ द मेल इज इन द फैमिली, हम उसके बेसिस पे उनके स्टेटस को स्टडी करते हैं। इधर ही कैन बी अ हस्बैंड और ही कैन बी अ फादर और ही कैन बी अ ब्रदर, उसके बेसिस लाइक वो इंजीनियर की बहन है, वो एमपी की बेटी है, ठीक है, इस तरह से वी call on that basis, ठीक है। and this has been termed a natural by functionalist sociologist like कौन कौन से functionalist sociologist आए थे यहाँ पे जेंडर में? मूरडॉक एंड एक और आते हैं पार्सन, ठीक है। पार्सन हमने कवर कर रखे हैं। तो मूरडॉक एंड पार्सन ये बोलते हैं बायोलॉजिकल थ्योरीज जो है हमारी सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एंड सपोर्ट दिस फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। तो हाउएवर हम जो देखते हैं कि नेचुरल रोल्स जो है हमारे थीसिस में हैज़ कम अंडर एन अटैक as women enter the labor force, the traditional patriarchal division of a labor is slowly being turned on its head. तो women are attached to a two-fold stratification. women किससे two-fold stratification से attached हैं? कैसे? like therefore a relation to a man and in relation to other women, and it's operate the two level which are within the family and outside the family, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बहुतों ने देखा होगा आपकी मम्मियाँ, जिनकी मम्मियाँ वर्किंग है, वो बाहर जा रही हैं, बाहर लाइक स्कूल में पढ़ाने जा रही हैं, पढ़ाने के बाद घर आके खाना भी बना रही हैं, दो दे आर वेरी टायर्ड बट स्टिल दे आर मेकिंग लंच फॉर यू एंड दे आर इवन मेकिंग ब्रेकफास्ट, अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बना के फिर स्कूल जा रही हैं पढ़ाने के लिए, फिर आ रही हैं और उसके बाद फिर खाना बना रही हैं, फिर शाम को फिर कर रही हैं। बट अ फादर हु गोज आउट फॉर द ऑफिस, ही कम्स बैक एंड मदर ऑफर्स हिम अ टी, water. He can't even take up water or tea by himself. He can't even make. So that's what majority of the women's, they are doing dual jobs. One at home, other one at outside. So here you can say that is like the unequal access to resources. It's due to this opportunities and rewards and rights between men and women are legitimized हो गई हैं by the patriarchy across societies and cultures, and it is reinforced through patriarchy and its institution, gender division of labor, social institutions like marriages, dowry, property, inheritance and subordinance. जब हम inheritance की भी बात करते हैं, though our Hindu succession law says that a girl also has a same equal right to inherit father's property, but how many of the girls in our country have gotten this right? Barely 10 to 15 you will count on tips. Rest are what? Rest are not even welcomed back after marriages to their home. If their marriage is not working that well, if they are not satisfied, if they want to break their marriages, they're not supported also. Like the recent case, you can say Nikki murder case. You can say abhi kuch bhi bolo, but earlier their family, they went to panchayat, but what happened to them? पंचायत गए थे ना, क्यों गए थे पंचायत? When you have a law, when you have rules and regulation set by our constitution, proper आप law को क्यों नहीं order follow करते हो?
तो ठीक है, वो हमने देखा वहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी इंस्टीट्यूशंस हमारे किस तरह से काम करते हैं ये देखा हमने। तो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो हैं वो बोलते हैं लाइक थॉट has led to the conceptualization of sexual division in term of place of female labor within the class structure, जहाँ पे ये बोलेंगे functions for capital। तो function for capital की बात करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ लिखा होगा जेंडर भी, एक सेकेंड चलते हैं इसको, नीचे होगा। स्टेटस ग्रुप कर लिया था हमने, प्रेजेंट कंटेक्स्ट जेंडर, ठीक है। Differences between sex and gender refers to the biological characteristics that define males and female, ठीक है। जेनेटिक एंड बायोलॉजी, ठीक है। अब जैसे एक बॉयज़ की मसल्स होती हैं, वुमेन का इमोशनल पावर बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है, ठीक है। इट्स टिपिकली बाइनरी। जेंडर इज बेसिकली रेफर्स टू द सोशल एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म्स एंड एसोसिएटेड विद द being male or female, ठीक है। and can be fluid and can vary across a culture and time period, includes traits like personality and sex versus gender। किस तरह से ये biological, cultural, given by birth, ये इनको learned through socialization, therefore किस तरह से cannot be changed, can be changed। example, only women can give birth, only man can be impregnant, women and men can work as a teacher, engineer and laborers, women and men can take care of children and the elderly, बट मेजॉरिटली चिल्ड्रन एंड एल्डरली की टेक केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने किस पे डाल रखी है, मम्मियों पे, घर में वुमेन्स पे। दे आर द केयर टेकर, दे आर द टीचर, दे आर एवरीथिंग फॉर होम, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन्स इन अ कंट्री दे लिसन टू अ कमेंट। व्हाट्स द कमेंट? व्हाट यू डू एट होम। तो डोमिनेंट सोशियोलॉजिकल पोजीशन क्या है आपकी? सोशल फैक्टर्स हैं जो कि नॉट बायोलॉजी आर द रीजन वी बिहेव द वे वी डू। ईच ह्यूमन ग्रुप जो है मेक इट्स ओन इंटरप्रिटेशन को बनाता है एंड फिजिकल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ असाइन मेल्स एंड फीमेल टू सेपरेट ग्रुप। जैसे कि आप गाड़ी चला रही है फीमेल, तो मेजॉरिटली बॉयज़ का कमेंट क्या होता है? गाड़ी चलानी आती नहीं है, चल दी है गाड़ी चलाने, दो शी में बी अ गुड ड्राइवर, बट नहीं, क्योंकि वो वुमेन है तो हमने उसे समझ के रखा है कि उसको तो गाड़ी चलानी आती नहीं है। दो इन आ वर्ल्ड ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो वुमेन्स आर गुड रेसर, अच्छी रेसर हैं वुमेन। और बहुत सारे जैसे शेफ़ देखते हैं तो हमारे जितने 5 स्टार होटल्स में जो बढ़िया शेफ़ हैं वो मेजॉरिटली क्या है, मेल्स हैं। बट घर में हम उनको खाना बनाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, वो तो ड्यूटी किसकी है? मम्मी की ड्यूटी है, ठीक है। मम्मी की, वाइफ की, बहन की, इनकी ड्यूटी है, मेल की ड्यूटी नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं। सो देयर पीपल लर्न व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू देम एंड आर गिवन डिफरेंट एक्सेस टू देयर सोसाइटीज प्रिविलेज। तो बहुत सी जगह सोसाइटी के प्रिविलेज के बेसिस पे भी हो जाता है। तो जहाँ पे हमारे ये थिंकर आते हैं, लाइक इवन कम्युनिस्ट कंट्रीज like Russia thought that workforce participation of women has increased and women are still being restricted to certain feminine role only। जैसे कि वुमेन मेजॉरिटली स्कूलों में ज़्यादातर वुमेन एज अ टीचर होंगी, मिलेंगी आपको। सिमिलरली इन द कुबुत्स ऑल्सो thought that एक थिंकर है हमारे, he also thought that there is a theoretical equality between men and women। A study of a Leonel Tiger and Joseph Safford in 1970s, जब 1970s के टाइम पे he said that receive the kibbutz are also highly polarized and male take agriculture and construction etc, and where women take role like nursing, infant, teaching, kindergarten, ये वाली। and while nature created sexual differences, gender is a social construct इसकी वजह से। according to feminist sociologist Ann Oakley हमने इससे पहले भी करी है, तो Ann Oakley she rejects करती हैं that biological basis are offered as tiger and fox, parson etc। according to feminist, women are oppressed as a class by men and patriarchal structure are geographically and historically almost
यूनिवर्सल। तो फ्रैंक पाकिन आते हैं इन हिज क्लास इनइक्वालिटी एंड द पॉलिटिकल ऑर्डर इन 1972 ही सेज दैट dismisses the idea of women being a class according to whom him woman is a part of family। ही अलग ही अपनी सोच बोलेंगे, woman is a part of फैमिली की पार्ट है वुमेन, ठीक है, एंड इज नॉट एन इंडिविजुअल, आर एक्चुअली अ बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। सिमिलरली हेलन मेयर जो है ये आपके ऑल्सो डिसमिसेस क्लास नोटिसेस अटैच टू द वुमेन एंड इंस्टेड टर्म्स दैट इट इज अ एज अ माइनॉरिटी, और देखा भी जाए तो ये माइनॉरिटी ही है वुमेन, ठीक है। Gender stratification has also moved beyond conventional male-female debate, an increasing focus on transgender, bisexual, gays, lesbians is also there. So many countries have their own now officially recognized and given legitimacy to such groups, but still there are some countries who don't give. And societies हैं हमारी, इंडियन सोसाइटीज़ में ही बात कर लो, कहाँ इतना हमने इतनी एक्सेप्टेंस दी है। आज भी हमारे मतलब हमने बेशक इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर्स को एक्सेप्ट कर लिया है, बट वी एज अ सोसाइटी हैव वी एक्सेप्टेड देम? नो। बहुत सी जगह आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, आज भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, जबकि उनका तो उसमें कोई फॉल्ट भी नहीं है बेचारों का, ठीक है। तो अब अभी हम देख सकते हैं कि इसमें रीसेंट मोबिलिटी जो है हमारा स्टडी शोज करती है दैट वुमेन आर डूइंग कंसिडरेबली बेटर देन इवन बिफोर, पहले से अच्छा कर रही हैं। इन इंडिया ऑल्सो मोर एंड मोर वुमेन आर गेटिंग इनटू एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीजिंग ऑटोमेशन इन इंडस्ट्री, जैसे बहुत सारी वुमेन्स आजकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एज अ सब्जेक्ट भी चूज़ कर रही हैं, पहले नहीं चूज़ करती थी, ठीक है। अब ऑर्थोपेडिक्स एज अ प्रोफेशन भी चूज़ कर रही हैं मेजॉरिटली, वरना अगर आप डॉक्टर प्रोफेशन में देखते तो गायनोकोलॉजिस्ट ही बनना चाहती थी वुमेन्स, बट अब क्या है वो ऑर्थो भी बनना चाह रही हैं, हार्ट सर्जन भी बनना चाह रही हैं, अब आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा, ये चेंजेस आ रहे हैं इंडियन सोसाइटी में। इन इंडिया also education attainment among the women has improved significantly, like percentage in terms of compared to men in 2011, और majority जो women होती हैं वो ज़्यादातर आजकल टॉपर्स होती हैं, ठीक है। मतलब किसी भी एग्जाम्स में देखोगे like इधर टॉक अबाउट नीट और किसी भी एग्जाम की टॉपर मेजॉरिटली ज़्यादातर अब वुमेन्स हो रही हैं एंड होती हैं, एंड दिस इज़ वॉट कि वो जिनको पहले मौका नहीं मिला अब उनको मौका मिल रहा है तो वो टॉप कर रही हैं। तो लाइक देयर इज हम क्या देख रहे हैं, सोसाइटी में चेंज देख रहे हैं भाई। तो यहाँ पे मैकेनाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्क लाइक वॉशिंग मशीन्स एंड पैक्ड फूड हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड सम बर्डन्स ऑन वुमेन एंड शी कैन डिवोट मोर टाइम और टू हर करियर। जैसे कि मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, हाउ? बिकॉज आई हैव ऑल द basic necessity at home, other people are doing my other things, I can even pay for that, and that's the reason I'm able to work। तभी मैं काम कर सकती हूँ, तभी मैं पढ़ा सकती हूँ, I'm also teaching। This is the simple my free time thing, what I'm doing in my recording lecture, this is a free time job, but other time I'm teaching। So that's the reason why I'm able to do, because I have the everything at home. I have a maid at home to look after the things. I have my other equipments at home, so that does the everything. Even I have a camera installed at home, so I can wherever I can even watch it. So that's the thing. So ये सब amenities आ गई हैं, ये सब basic आपको फैसिलिटी मिल पा रही हैं। दैट्स द रीज़न यू आर फ्री टू चूज योर करियर, यू आर फ्री टू ऑप्ट फॉर योर करियर, ठीक है। तो देयर आर वुमेन जिनके पास नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ ऑल्सो गिवन सम सिक्योरिटी टू वुमेन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज लाइक इंडिया। न्यू लॉज लाइक सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट आया था 2013 में, ये इसने भी लाइक विल प्रमोट अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट टू एनकरेज वुमेन पार्टिसिपेशन एंड कपल्ड इंस्टीट्यूशन मेजर्स एंड सोशल मूवमेंट ऑल्सो। वुमेन आर क्लेमिंग मोर स्पेस इन मेल डोमिनेटिंग एरियाज and this is certainly making stratification less skewed. And other important thing, all the women who are able to work, and that is the reason because they have a very progressive father, very progressive brother, very progressive thinking husbands. That's the main reason, and I have all three.
सो मेजॉरिटी ऑफ आर वर्किंग वुमेन्स दे हैव ऑल थ्री, जो उनकी प्रोग्रेसिव अप्रोच है जिसकी वजह से वुमेन जॉब कर पाती है, वरना आज भी बिजनेस फैमिलीज में वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता है जॉब करने के लिए। दे आर सेड हाँ कितने चाहिए, आस्क मी, आई विल गिव यू, यू नीड नॉट टू डू जॉब। बट फॉर्चुनेटली वी आर लकी टू हैव बी इन अ फैमिली जहां पे हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, एंड दैट्स थैंक्स टू ऑल मेंस हु हैव सपोर्टेड अस, and that's our father, brother-in-law, mother, so they all supported us. How female became minority group कैसे? Because minority group applies to the people who are discriminated against on the basis of physical and cultural structure regardless of their numbers. इसी को बोलते हैं ना minority. तो ओरिजिन ऑफ पेट्रियार्की कैसे आता है? पेट्रियार्की इज लाइक डोमिनेटिंग अ सोसाइटी पॉइंट ऑफ सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इन अर्ली हिस्ट्री life was very short, and to maintain the population many children had to be born. Women became tied to the children and assumed tasks that were associated with the home and child care. Men took over hunting and trading, quarreled and waged war, became dominant. Men came to think themselves inherently superior based on the evidence that they dominated society. They shrouded many of their activities with secrecy, constructed elaborated rules and rituals to avoid contamination by female whom they openly deemed inferior. तो पहले इन्होंने वुमेन्स को inferior ही माना था. Gender is one of the most, क्या बोल सकते हैं, pervasive and prevalent social characteristics upon which social distinction are made between individual. Gender distinctions are found in economic kinship and caste based stratification system. तो अभी तक हमने ये कर लिया. तो यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट आई थी, यूएन की रिपोर्ट 1980 में ये डिक्लेयर करती है वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, परफॉर्म नियरली 2/3 ऑफ इट्स वर्क आर एंड रिसीव 1/10 ऑफ द वर्ल्ड्स इनकम एंड ओन्स लेस देन 1/100 ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉपर्टी. आज भी वुमेन्स के नाम पे बहुत ही कम प्रॉपर्टी होती है. वुमेन्स की पास में इतनी वेल्थ नहीं है जितनी होनी चाहिए. ठीक है. ऑल दिस इज ऑल फॉर टुडे. See you in next lecture with global inequality. Today we have covered stratification on this class, conflict, power, then your property, then gender, and Weber's approach, Davis and Morey. So tomorrow we will be doing these all topics, and most probably I'll try to wind up this chapter by tomorrow evening तक. कल शायद मुझे 3 लेक्चर अपलोड करने पड़ेंगे. Okay, no issues. I'll try to do it. Bye bye. See you in the next lecture.